Hello students, today I'm going to start a new chapter in Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, chapter number 4, part 2, Bills of Exchange, session number 1. In past different examples, in past different theories, 1 or 2 points were there related to the bills. That is the part of our accountancy, bills receivables and bills payable. You know that one in the first chapter, terminology, bills receivable, bills payable were there in the sense of the debtors, creditors. But how to write down these bills, how to utilize these bills, it is here. You will understand in theory and also in some of the example related to these particular bills, and you will easily understand how to utilize these bills for the future. The surety is there, you will get the money if the particular bills are given or received. Okay. So let's start with the first session with the theory. Here before starting, total points are 18, but as per the 30% deduction, we have only 1 to 5 points. 1 to 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is not in syllabus. 1 to 5 is there, 6 to 10 is not there, 11, 12, 13, 15 it is there, 11 to 15 it is there, 16, 17 and 18 it is not there. Same as there in the illustration also, right? Illustration 10, 11, 12, 13 is not there, and example number 9, 10, 11, 12 is not there. So one by one I will start and give the information of the information related which points are included or not there. So let's start with the first one, introduction. Here it is. You have basic knowledge regarding the particular bills. आपको मालूम है बिल्स क्या है, लेकिन इसको यूटिलाइज करने के लिए हमें ये चैप्टर देखना पड़ेगा. मोस्टली जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. आपको मालूम पड़ गया होगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हमारे बिजनेस में यूज़फुल है. कैश ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस वेयर देयर इज an immediate give and take of cash. On the spot you will receive the cash, or on the post you have to pay the cash, maybe in the different sense, but cash is paid or received on the spot. Example is here, cash purchase transactions, cash sales transactions. Sometimes the expenses are paid, sometimes the incomes are received in cash. So that is the one example, or 1 or 2 different examples. Credit transactions, those transactions where cash is not paid immediately, but it is a simple thing, you have to pay in future. So immediately the cash is not paid, but it is payable during a specific period subject to the condition agreed at the time of transaction. So when the transaction is there or it happened at that time, the condition is there okay, when and where you will pay the amount. At that time you have to pay the amount in future. ओके. सो जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं उसका अमाउंट आपको ऑन दी स्पॉट तो नहीं ही मिलेगा, वो फ्यूचर में मिलेगा. शायद नेक्स्ट डे भी मिले, डे आफ्टर टुमारो मिले, 1 मंथ, 15 डेज, 6 मंथ्स, राइट, 1 ईयर, दैट्स ऑल. आफ्टर 1 ईयर जब कंटिन्यूटी आती है तब देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही समझ लो कि एक फाइनेंशियल ईयर में उसका पैसे आपको पे करने या रिसीव करने पड़ेंगे. क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी. सो इन सच ट्रांजेक्शन द पेमेंट ऑफ अमाउंट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट पीरियड. तो वॉट एवर अमाउंट इज पेएबल इट इज़ डिपेंड ऑन द क्रेडिट पीरियड. ये क्रेडिट पीरियड कौन डिसाइड करता है? ये क्रेडिट पीरियड सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करते हैं, कोई संजोग जिसे बोलते हैं. ये क्रेडिट पीरियड रिलेशन डिसाइड करते हैं डेटर क्रेडिटर के हिसाब से. ये पर्टिकुलर आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस के हिसाब से डिसाइड होते हैं, या फिर ऐसा कोई प्रिंसिपल है उसके हिसाब से क्रेडिट पीरियड डिसाइड होता है. तो लेट्स सी एंड लुक आफ्टर द 1 by 1. उसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस टाइम तक आपको उसको पे कर देना पड़ता है. सो द क्रेडिट पीरियड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, करंट सिचुएशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंडीशंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन. तो ये सब कंडीशंस के इसके ऊपर ही जो क्रेडिट पीरियड आपका डिसाइड होता है. सो इफ द क्वेश्चन इज दैट हाउ द क्रेडिट पीरियड डिसाइडेड, इट इज डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शंस, राइट. मैंने बोला डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल साउंडनेस, एक्चुअल कंडीशन. कोविड-19 है तो उस टाइम पे सबको पैसे की ज़रूरत थी, अभी भी ज़रूरत है. तो सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको गुड्स बेचते हो तो ऑन द स्पॉट डिमांड करेंगे विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड. ओके. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट. यू नो दैट वन डेटर क्रेडिट रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, और समटाइम्स द अपोजिट पार्टीज फाइनेंशियल. तो इसके हिसाब से आपकी क्रेडिट जो है पीरियड की लिमिट वो डिसाइड होती है. एट प्रेजेंट और इन प्रेजेंट टाइम्स विद द इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, नंबर ऑफ बिजनेस, नंबर ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीजिंग. सो अभी का जो टाइम है वो नंबर ऑफ द बिजनेस एंड साइज इज इंक्रीजिंग in quantity. So the number of credit transaction also increase, and also importance are there of the day to day. So अब ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है. अभी के समय में आप देखो ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, इसका रीज़न है नंबर ऑफ द
बिजनेस बढ़ रहे, साइज़ बढ़ रही बिजनेस की, क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर साइज़ बढ़ा है, अगर बिजनेस बढ़ा है तो ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। तो ये जो उसका जो इम्पोर्टेंस है, राइट, वो भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सो इफ़ द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स गिवन इन क्रेडिट इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन टाइम, many times businessmen have to face financial problems and it's also affected on their other transactions। यानी कि अगर आपको पैसे टाइम पर नहीं मिले, यू विल नॉट गेट द मनी ऑन टाइम समटाइम्स, राइट, तो उस टाइम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू पे टू अदर्स। अगर आपने किसी को दे दिए फिर भी पैसे नहीं मिले, और अगर आप भी किसी को नहीं देते तो उसकी भी कंडीशन खराब हो जाएगी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में भी इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, वो पहले चैप्टर में आप देख चुके हैं हमारे पार्ट 1 में। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको होंगे। सो ईच बिजनेसमैन विशेस टू रिसीव द अमाउंट ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन टाइम। अब कौन सा कोई एक ट्रेडर होगा जो नहीं चाहेगा कि आप उसे पैसे ना दें? तो इट इज़ द डिपेंड अपॉन अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल कि आनी जोड़े व्यवहार करी तो पैसा नहीं ज मळे, तो वाई आर डूइंग बिजनेस विथ दैट पर्सन, बट दे आर डूइंग बिजनेस विथ दैट पर्सन बिकॉज ऑफ द रिलेशंस। तो उनको मालूम है, फिर भी वो बिजनेस करते हैं। यहाँ एक ही सिंपल सी चीज़ है कि कोई एक आपको श्योरिटी मिलनी चाहिए कि आपको ऑन दैट डे पैसा मिले। तो यहाँ ये सेंटेंस याद रखो कि एक बिजनेसमैन वही विश करेगा टू रिसीव द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन टाइम। जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन उसने की है और जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन उसके लिए किए गए, सबके पैसे बार जो भी हम बोलते हैं ऑन टाइम उसको मिलने चाहिए और उसको पे भी करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन नहीं होती है तो हम नहीं पे कर सकते, लेकिन जब भी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो उसका पेमेंट और रिसीव जल्दी से होना चाहिए। टू मेंटेन द फाइनेंशियल लिक्विडिटी, राइट, दैट इज प्रवाहिता जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस। नॉर्मली बिजनेसमैन यूजेस अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच द पर्सन फ्रॉम whom an amount is receivable accept his debt in writing and states the time of payment of the amount or accept to pay at the time stated in the document। तो सिंपल पहले मैं समझा दूँ कि हर टाइम कोई भी एक ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उसको ऐसा लगता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए, तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट यूज़ करता है। वो डॉक्यूमेंट है उसमें जिससे भी उसे पैसे लेने हैं, राइट, वो एक्सेप्ट करता है कि आई विल पे द अमाउंट इन राइटिंग। वो राइटिंग में हमें लिख के देता है कि आई विल पे द अमाउंट, राइट, ऑन सो एंड सो डेट, एंड देन आफ्टर ही एक्सेप्ट्स कि आई विल पे ऑन दैट टाइम। दैट इज़ द वन डॉक्यूमेंट। तो सिंपल थिंग ये है कि यहाँ पर सामने वाला यानी हमारा डेटर हमें लिखित में देता है कि मैं इतने दिनों में आपको पैसे दे दूंगा। सो इससे ज़्यादा श्योरिटी क्या है? सो दैट इज़ द आवर बिल्स। ओके, वंस अगेन फिर से एक बार, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल क्या है, बिल्स क्या है? तो टू मेंटेन द फाइनेंशियल लिक्विडिटी नॉर्मली बिजनेसमैन यूजेस अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच द पर्सन फ्रॉम whom एन अमाउंट इज़ रिसीवेबल। देख लो फिर से, बिजनेसमैन एक डॉक्यूमेंट यूज़ करता है, राइट, जब ट्रांजेक्शन करता है तब, और वो पर्सन जिससे उसको पैसे लेने हैं, राइट, रिसीवेबल है, एक्सेप्ट हिज डेट, वो अपना जो भी डेट है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं पे करूँगा राइटिंग में, एंड स्टेट्स टाइम ऑफ द पेमेंट, और वो कब पे करेगा वो टाइमिंग लिखता है, और एक्सेप्ट टू पे, और फिर ये टाइम पे मैं पे करूँगा ऐसा लिख के देता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। सो इफ़ द डेटर फेल्स टू पे द अमाउंट, अगर ये डेटर अमाउंट पे करने से फेल हो गया, कई बार ऐसा होता है, राइट, कि जनरली उसने लिख के दिया पर उस टाइम पे उसकी कंडीशन अच्छी ना हो, तो इफ़ ही फेल्स टू पे द अमाउंट, दिस डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड एज अ रिटर्न एविडेंस ऑफ द ड्यूज। तो उसकी जो बाकी पड़ती अमाउंट है उसके लिए उसको ये डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है कि आपने लिख के दिया था। अगर हाँ कंडीशन अच्छी हो तो दे देगा, कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, हमें फ्यूचर में भी उसके साथ किसी ना किसी तरह के ट्रांजेक्शन करने ही है, तो फिर हम शायद 1-2 दिन प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। सो ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, याद रख लो। सो दिस डॉक्यूमेंट कैन बी यूज एज एन रिटर्न एविडेंस, ये याद रखना, राइट, ऑफ द ड्यूज। तो इन दिस वे द डॉक्यूमेंट्स विच आर यूज्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। ये तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं वो 2 टाइप के हैं। पहला टाइप है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड दूसरा टाइप है प्रॉमिसरी नोट्स। अब याद रखो टाइप 2 है वो याद रखना, लेकिन ये दूसरा टाइप हमारे सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है, और वैसे भी उसका जो वैल्यू मार्केट में अब नहीं चलता बिकॉज वो थोड़ा ऑफिशियल नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते बिजनेस में। तो 2 टाइप्स के ये डॉक्यूमेंट्स है। पहला वाला हम देखते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हियर इट इज़।
The definition of bill of exchange as per Indian Negotiable Instrument Act that was in 1881 is as follows. याद रखना ये जो डेफिनेशन दी गई है वो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तौर पर है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, राइट, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। ये एक्ट को हम फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं, राइट। तो दैट इज़ इन और दैट वाज इन 1881, तो बहुत साल पुरानी ये डेफिनेशन है। समझ लो कि पहले क्या चलता होगा, इसके हिसाब से ये दिया गया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ वन टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट is writing, right, it is in writing. So bill of exchange क्या है, it is an instrument in writing, लिखित में है, containing an unconditional order, उसमें क्या है, एक ऑर्डर है, लेकिन कैसा है, अनकंडीशनल, उसकी कोई भी कंडीशन नहीं है, बिन शर्ती जिसको बोलते हैं, उसमें कोई शर्त नहीं है। तो याद रखना ये राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल ऑर्डर है उसमें, और साइंड बाय द ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इट इज़ साइंड बाय द ड्रॉवर directing a certain person to pay a certain sum of money only at a specified time to a certain person or according to his order or to the holder of the instrument. तो एक सिंपल सा समझ लो, यहाँ एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है इसमें, और यहाँ ड्रॉवर वो साइन करके देता है, और इसमें लिखा होता है कि ऑन सो एंड सो डेट सम ऑफ द अमाउंट विल बी पेड बाय द वन पर्सन, राइट। और किसको पे करना है, जिसके पास ये है वो उसको पे करना है, जो लेके आया उसको पे करना है। सिंपल सा चीज़ यहाँ पर दिया है, राइट। तो इट इज साइन बाय द ड्रॉवर डायरेक्टिंग, उसमें क्या किया है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, उसमें लिखा है इसी को पे करना है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तो सामने वाला बंदा क्वांटिटी में जो भी अमाउंट लिखी है वो पे करेगा, वही पे करेगा एट अ स्पेसिफाइड टाइम, वो उसमें लिखे हुए टाइम पर पे करेगा, राइट। किसको, टू अ सर्टेन पर्सन, कोई चौक्कस व्यक्ति, कोई निश्चित व्यक्ति को पे करेगा, अथवा शादी भाषाમાં કહે તો એને જ આપશે જેનું નામ લખેલું છે, ઓર એકોર્ડિંગ ટુ હિઝ ઓર્ડર, અથવા જેનું નામ લખેલું છે એ કહેશે એને આપવામાં આવશે। और तीसरा चीज़ टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसको, है। तो दिस इज़ द मीनिंग एज पर द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसको फॉलो करके हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना है। तो इसको तैयार कर देना, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, लिखत में है, उसमें जिसका नाम लिखा है वही उसको पे करेगा, जिस टाइम पे लिखा है वो टाइम पे पे करेगा, जिसको पे करना है उसका नाम लिखा है, अगर उसको नहीं पे करना है तो जिसका नाम लिखा है वो बोले उसको पे करना है, और जिसके पास है उसको पे करना है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। इसका दूसरा नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, इज ऑल्सो कॉल्ड लेटर ऑफ एक्सचेंज, यहाँ कुछ एक्सचेंज होता है ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है। विद एनी बिल इज एक्सेप्टेबल लीगली, एनी बिल इज एक्सेप्टेबल लीगली और नॉट, इट कैन बी नोन फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, फीचर भी बोल सकते हैं। तो ये लीगली है कि नहीं कब मालूम पड़ेगा, जब हमारे पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके फीचर्स हो गए तभी। लेट्स सी फर्स्ट वन, इन राइटिंग। यहाँ ओरली कुछ नहीं चलेगा। अ बिल मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखत में होना चाहिए। सो एन ओरल ऑर्डर कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिल। तो कोई भी बिल होगा, हम उसे में कई बार कई इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, इट शुड बी इन रिटर्न और ओरल मैनर। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं चलेगा, इट शुड बी, मे बी, मस्ट बी, 101%, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। ये श्योरली प्योरली रिटर्न में होना चाहिए। हम कह सकते हैं ओरली नहीं चलेगा। सेकंड वन, अनकंडीशनल ऑर्डर। ये समझ लो, वहाँ पर एक डेफिनेशन में ये वर्ड यूज हुआ था, अनकंडीशनल ऑर्डर। तो ये क्या है, द ऑर्डर मेड इन द बिल मस्ट बी अनकंडीशनल। दिस मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। दिस ऑर्डर शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ये अनकंडीशनल है, बिन शर्ती, यानी कि यहाँ उसका मीनिंग क्या होता है, याद रखो अनकंडीशनल का। दिस पर्टिकुलर इट शुड नॉट बी एनी कंडीशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है पेमेंट करने की, राइट। और दूसरी बात, ये हमेशा एक पर्टिकुलर ऐसे फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, તમે આપી દેશો, રાઈટ। દેટ મીન્સ એ સિમ્પલ ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ કે તમે આપો તો સારું, દેટ મીન્સ સમ ઓફ ધ રિક્વેસ્ટ ઇઝ નોટ देयर, राइट। अनकंडीशनल ऑर्डर है, कंडीशन ऑफ द पेमेंट मे बी नॉट देयर, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। और दूसरी चीज़ भी है जो इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट भी नहीं होनी चाहिए, तो ये अनकंडीशनल है। तीसरा वाला, स्पेसिफिक पर्सन। द बिल मस्ट बी एड्रेस टू अ स्पेसिफिक पर्सन। इसमें 101% को एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम होना जरूरी है, और जनरली किसका होगा, जिसको हमने ऑलरेडी माल बेचा है क्रेडिट पर, उसी का नाम होगा, राइट, उसकी फर्म का होगा, राइट। तो स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए। फिफ्थ वन,
बिल एक्सेप्टर एंड अमाउंट रिसीवर, यहाँ कोई एक बिल एक्सेप्टर होगा और वो एक अमाउंट रिसीवर भी होगा। कैसे देख लो, इन अ बिल द बिल एक्सेप्टर एंड अमाउंट रिसीवर बोथ आर सेपरेट पर्सन, जो बिल एक्सेप्ट करता है और जो बिल एक्सेप्ट करके पैसा लेता है दोनों बंदे अलग अलग हैं। देयरफॉर द नेम्स मस्ट बी क्लियर एंड बोथ शुड बी स्पेसिफिक पर्सन, यहाँ जो बिल एक्सेप्ट करता है शायद वो अलग पर्सन हो और जो अमाउंट रिसीव करता है वो भी अलग पर्सन हो, तो उस टाइम पे वो मेंशन करना चाहिए कि बिल किसने रिसीव किया था और अमाउंट किसने रिसीव किया था, क्योंकि बड़ा बिजनेस होता है तब ये प्रॉब्लम होता है। सो नेम मस्ट बी देयर। फिफ्थ वन, ऑर्डर फॉर द पेमेंट, यहाँ एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है। कैसा वाला, द ऑर्डर मस्ट ओनली बी फॉर द पेमेंट ऑफ इंडियन मनी, यू हैव टू पे द अमाउंट इन इंडियन मनी, ये लिखा जाता है, नॉट फॉर अ प्रोडक्ट और कंसिडरेशन ऑफ मनी। यहाँ पहले जो बार्टर सिस्टम चलती थी या फिर एक्सचेंज जो कुछ गुड्स सर्विस मिलती थी वो नहीं आएगा, यहाँ पेमेंट सिर्फ एंड सिर्फ मनी के थ्रू होगा, वो कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन है, इट शुड बी इन इंडियन रुपी नॉट इन अ प्रोडक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ मनी, राइट, उसका कंसिडरेशन कुछ नहीं चलेगा। सिक्स्थ वन, डेफिनिट अमाउंट, द अमाउंट शोन इन द बिल मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनिट, वो चौकस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। सेवंथ वन, क्लियर डेट, द डेट ऑफ राइटिंग द बिल मस्ट बी क्लियर, वो क्लियरली दिखे ऐसा होना चाहिए। अगर आप जो गुजराती में शायद लिखते हो, राइट, गुजराती में तो नहीं आएगा शायद ये बिल्स, जो लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स लेटर ऑफ द पर्टिकुलर हम बोलते हैं एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो जिस लैंग्वेज में लिखते हो, मोस्टली हम इंग्लिश गुजराती का यूज़ करते हैं, तो वो सीधी तरीके से लिखा होना चाहिए क्लियर डेट के साथ, राइट। नेक्स्ट वन, 8(1) डेफिनिट ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ द बिल मस्ट बी डेफिनिट, टाइम पीरियड मस्ट बी डेफिनिट होना चाहिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, दैट्स ऑल, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा आएगा, ये भी हम देखते आएगा, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द बिल मस्ट बी डेफिनिट, वो एक चौकस होना चाहिए। नेक्स्ट वन, 9th वन, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, द बिल मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग और ड्राइंग द बिल, जो बिल लिखता है उसका नाम होना चाहिए। तो मालूम कैसे पड़ेगा किसने बिल लिखा है, ऐसा नहीं होता कि ओनर ही बिल लिखता है, बड़ा बिजनेस हो तो उसका एक असिस्टेंट भी होता है, एक अकाउंटेंट भी होता है, एक जूनियर क्लार्क भी होता है, सीनियर क्लार्क, कोई भी लिख सकता है ना, तो उसका साइन होना जरूरी है, तो इट मस्ट बी देयर, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु इज ड्राइंग अ बिल और पर्सन हु इज राइटिंग द बिल, जो लिखता है उसका साइन होना जरूरी है। 10th वन, रेवेन्यू स्टैम्प, इट इज़ कंपल्सरी है, रेवेन्यू स्टैम्प दैट इज अधेसिव, उसको हम चिपकाते हैं, इट शुड बी देयर, इट मस्ट बी देयर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट दैट मस्ट बी अफिक्स्ड ऑन द बिल डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल, राइट। अभी के नियम से चलते हैं तो 3,000 5,000 के ऊपर का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर ये अधेसिव होना चाहिए, यानी ये स्टैंप होना ज़रूरी है। मार्केट में यानी कि पोस्ट ऑफिस में ये 1 रुपये का 1 मिलता है, राइट, तो जो अमाउंट है उसके हिसाब से आपको ये चिपकाना होता है, राइट, इट इज़ डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द बिल, राइट, वो सिंपल सा है, राइट, वो एक पर्टिकुलर श्योरिटी देता है, या राइट, रेवेन्यू स्टैम्प क्या है उसकी वैल्यू बहुत है, राइट, यानी अगर उसको यहाँ कोई ना कोई जगह इसका यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू बहुत, वो डॉक्यूमेंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, राइट, तो याद रखना हो। 11th है ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, सो द पेमेंट ऑफ बिल इज़ डन ऑन डिमांड, जब भी आपको उस समय लिखा गया उस टाइम पे उसको देना चाहिए, राइट, ऑफ द ड्रॉवर और आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम। तो ये जो पर्टिकुलर ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम है, याद रखो कि पेमेंट जो है वो हमें डेटर करेगा, राइट, इट इज़ ऑन डिमांड, जब आपको उस टाइम पर लिखा गया है उस टाइम पे होना चाहिए, या फिर ड्रॉवर मांगे तब, या फिर स्पेसिफाइड टाइम जो नकदी टाइम लिखा है उस पर। 12th एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, द बिल बिकम्स ऑपरेटिव ओनली आफ्टर इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज़ ड्रॉन, जिसके ऊपर ये बिल लिखा गया है वो उसको एक्सेप्ट करेगा तभी, राइट, उसको ऑपरेटिव माना जाएगा, तभी वो कार्य में आएगा। सामने वाला ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर आप नहीं कह सकते कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड आपने पैसे क्यों नहीं दिए, क्योंकि वो तो एक्सक्यूज़ निकालेंगे कि भी मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो इट्स ऑपरेशन विल स्टार्ट आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्सन, जिस बंदे का नाम लिखा है, जिस ट्रेडर का, जिस बिजनेसमैन का नाम लिखा है वो उसको एक्सेप्ट करेगा तभी उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, राइट। So that is the characteristics और the list is there, total 12 characteristics. Now the different parties आते हैं, कौन कौन होता है इसमें, कौन कौन सी पार्टीज ये पर्टिकुलर बिल्स में होती है। सो डिफरेंट पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सो देर आर 3 पार्टीज, याद रखना 3 पार्टी है इसमें, पहला है ड्रॉअर ऑफ द बिल, दूसरा है एक्सेप्टर ऑफ द बिल और तीसरा है पेई ऑफ द बिल। देख लो ड्रॉअर ऑफ द बिल,
जनरली ही इज़ द क्रेडिटर और द ट्रेडर सेलिंग द गुड्स। तो ये ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर मीन्स ऐसा मत समझ लेना बैंकिंग के वर्ड में उसको ड्रॉवर यानी जो पैसा विड्रॉ करता है, हम ऐसी मेंटालिटी होती है कई बार दिमाग में, ये नहीं है। ड्रॉवर क्या है? जो बिल को लिखता है। जनरली कौन होता है? द क्रेडिटर, यानी जो सेल करता है वो। तो वन सेकेंड, ही इज़ द क्रेडिटर और द ट्रेडर सेलिंग द गुड्स। एक्सेप्टर ऑफ द बिल, कौन सा पर्सन इसको एक्सेप्ट करेगा? तो जनरली कौन होता है? ही इज़ द डेटर और द कस्टमर परचेसिंग द गुड्स। तो ये बंदे ने जो भी गुड्स बेचे हैं, जिसको बेचे है वो डेटर है, जिसने बेचे वो क्रेडिटर है। तो याद रखना, ड्रॉवर कौन है? जो बिल लिखता है, क्रेडिटर। एक्सेप्टर कौन है? जो गुड्स परचेस करता है, डेटर कस्टमर। पेई कौन है? तो देख लो, जनरली ही इज़ द ड्रॉवर ऑफ द बिल। तो जो ड्रॉ करता है बिल, यानी कि जो क्रेडिटर है वही पेई है। पेई मीन्स जो पैसा पे करता है वो नहीं है। पेई मीन्स द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द मनी। सो जनरली ही इज़ द ड्रॉवर ऑफ द बिल और द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिसीव द मनी और द पर्सन हु होल्ड्स द बिल, राइट। तो अब सामने वाले बंदे को आपने गुड्स बेचे हैं, उसको बिल दिया, उसने बिल एक्सेप्ट करके हमें वापस किया। जिसके पास बिल है वो पेई हो गया, या फिर बिल किसी और के पास है तो वो पेई कहलाएगा। तो समझ लो कि मैं क्रेडिटर हूँ, मैंने बिल लिखा, ड्रॉवर हूँ मैं, सामने एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट होके वापस मेरे पास आया, क्योंकि मुझे कब मालूम पड़ेगा उसने एक्सेप्ट किया? वापस आएगा तभी मालूम पड़ेगा ना। तो वो एक्सेप्ट होके मेरे पास वापस आया और बिल मेरे पास पड़ा है, तो मैं पेई हूँ, राइट। अगर मैंने बिल मेरे अकाउंटेंट को दे दिया, मेरे असिस्टेंट को दिया, मैंने मैनेजर को दिया, तो वो पेई है। सिंपल, जिसके पास वो बिल है, द पर्सन हु होल्ड्स द बिल, वो पेई है। अच्छा, दूसरी बात याद रखो कि मोस्टली जो ड्रॉवर होता है वही पेई होता है, यानी क्रेडिटर इटसेल्फ। सो क्योंकि बड़े बिजनेस में मोस्टली ये सब ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू वगैरह कुछ होते हैं, राइट, तो इसका यूज़ डायरेक्टली हो जाता है। तो पेई खुद ड्रॉवर है। नाउ इन द सम सिचुएशंस व्हेन द ड्रॉवर एंड पेई बोथ आर द सेम, देयर आर ओनली टू पार्टीज। याद रखो, जब ड्रॉवर और पेई सेम होते हैं उस टाइम पे सिर्फ दो ही पार्टी होती है, ओनली टू, राइट। ड्रॉवर और पेई और होल्डर ऑफ द बिल, ये ड्रॉवर, पेई और होल्डर जिसके पास है वो, और दूसरा एक्सेप्टर ऑफ द बिल। वैसे इन पर्टिकुलर प्रैक्टिकल आप देखने जाओ तो टू ही पार्टीज़ काम करती है, लेकिन थ्योरेटिकल मैनर में आपको याद रखना है तीन पार्टीज़ है। लेकिन अगर मेंशन किया है आपको एग्जाम में, राइट, कि जब सिचुएशन ऐसी हो, राइट, और सिर्फ ड्रॉवर और एक्सेप्टर हो तो सिर्फ दो ही पार्टी होगी। उसका दूसरा नाम याद रखो, पेई, होल्डर। So that is the information. Now normally a bill is drawn by a creditor on his debtor. तो हमेशा ये बिल कौन ड्रॉ करता है, कौन लिखता है? क्रेडिटर डेटर के ऊपर लिखता है, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द डेटर एंड रिटर्न बैक टू हिज क्रेडिटर। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्रेडिटर डेटर के ऊपर बिल लिखता है, डेटर वो बिल को एक्सेप्ट करता है और उसको वापस देता है, और वापस आता है फिर से वो ड्रॉवर के पास। तो यहाँ श्योर हो गया कि भाई जो इन्फॉर्मेशन अंदर लिखी है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो हमारा जो भी क्रेडिटर है, राइट, मीन्स हमारा जो भी डेटर है वो क्रेडिटर को पैसे देगा। सिंपल। सी द स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ एक स्पेसिमेन दिया गया है आपको, ध्यान से देख लो, याद रखना ये क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन, अमाउंट लिखा यानी इतना अमाउंट हमें लेना है। मित्र मिलन सोसाइटी, नारायणपुर, अहमदाबाद, 13 डेट 9 अगस्त 2016। इस डेट को हमने ये बिल लिखा है। इसमें क्या है देख लो, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय यू पे ₹10,000 ओनली टू रितेश और एज पर हिज ऑर्डर आफ्टर 3 months फ्रॉम टुडे। तो आज ये लिखा है, आज से सिर्फ 3 महीने तक, 3 महीने के बाद आपको 10,000 रुपये पे करने हैं रितेश को, और रितेश ना आए तो एज पर हिज ऑर्डर है। तो इसमें लिखा है, यानी लिखनार कोई अलग बंदा है, हम लोग बोल सकते हैं ये क्रेडिटर है, ड्रॉवर कोई अलग है, पेई कोई, पेई यहाँ पर रितेश है, और रितेश बोले मैं नहीं ये, तो रितेश का सुना जाएगा। सो यहाँ कौन है, किसको लिखा है हमने? टू श्री धवल को लिखा है, सरगम फ्लैट्स, जोधपुर, अहमदाबाद, इसके नाम पर हमने लिखा है। तो ये है हमारा एक्सेप्टर धवल, सिग्नेचर ऑफ द एक्सेप्टर। ये जो धवल यहाँ पर था ये उसका फर्म का नाम है, तो उसके सिग्नेचर उसने रिसिप्ट किया। कवि से सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर, ये हम बोल सकते हैं क्रेडिटर है, बंदा जो पर्टिकुलर जिसने गुड्स बेचे है, ट्रेडर है, राइट। तो इसने इसके ऊपर बिल रखा, इसने एक्सेप्ट करके वापस किया, और पैसे किसको देगा 3 महीने के बाद? रितेश को, या फिर रितेश बोले उसको। अब अमाउंट 10,000 है तो यहाँ रेवन स्टैम्प आना चाहिए, राइट। रेवन स्टैम्प याद रखो, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लग जाती है तो फिर बहुत उसकी वैल्यू बढ़ जाती है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की। तो ये समझ लेना। और ये एड्रेस जो है, राइट, ये एड्रेस है कविश का, ड्रॉवर का।
Simple. So let's look after the information which is here in a particular bill of exchange. So the details which are there. So the above specimen of the bill of exchange, understand with the details. First one, definite person. In the bill, each person must be definite individuals. Here Kavish is drawer while Dhaval is acceptor and Ritesh is receiver. तो यहाँ 3 नाम आ गए, देख लो आपके पास. कविश जो है वो हमारा ड्रॉवर है, सेकंड धवल जो है वो एक्सेप्टर है, एंड रितेश है वो पेई है यानी रिसीवर है. समझ लेना, उसको हम होल्डर भी बोल सकते हैं. सेकंड वन, अमाउंट. द अमाउंट पेएबल बाय द एक्सेप्टर मस्ट बी क्लियरली शोन इन द बिल. वो लिखा हुआ है 10,000, देखो ₹10,000 में लिखा है और वो वर्ड्स में भी लिखा हुआ है ₹10,000 ओनली. तो वो लिखा होना चाहिए जो हमने बोला था इंडियन रुपीज़ में क्लियरली, वो है. सो इन स्पेसिमेन द अमाउंट इज शोन बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स. थर्ड वन, डेट. द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन इज शोन इन द बिल. लिखा हुआ है 9th of August 2016, उस डेट पर ये लिखा गया था, तो स्पेसिमेन में है. राइट. नेक्स्ट वन, पीरियड. द पीरियड आफ्टर विच द अमाउंट इज पेएबल, दैट पीरियड मस्ट बी शोन क्लियरली इन द बिल. वो भी लिखा गया है, 3 महीना आपने देखा. सो इन द स्पेसिमेन गिवन पीरियड दैट इज 3 months. इट मस्ट बी देयर ना, ये होना ही चाहिए. जिस डेट पर आप लिखते हो, बिल लिखते हो, प्रिपेयर करते हो, उस डेट से लेकर जिस डेट को आप ये मैच्योर होता है, राइट, यानी इसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट. जब ये मैच्योरिटी डेट आएगा तब वो टाइम पीरियड लिखना है. यहाँ पर 3 months लिखा हुआ है. आगे पीरियड के बाद आएगा सिग्नेचर. द बिल मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ 2 persons. पहला है ड्रॉवर एंड द एक्सेप्टर दूसरा. तो जिसने बिल लिखा है वो क्रेडिटर और जिसने एक्सेप्ट किया है वो डेटर. तो स्पेसिमेन में देखो कविश का एज अ ड्रॉवर है बिल में और सिग्नेचर ऑफ धवल एज एक्सेप्टर है, दोनों हमने देखा. 6th वन, रेवेन्यू स्टैम्प. आगे भी हमने इसका डिस्कशन किया था, राइट, कि आदेशी स्टैम्प. इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अ बिल लीगली, वो लीगली अब ऑफिशियल हो गया. इट इज़ नेसेसरी टू अफिक्स अ रेवेन्यू स्टैम्प इन द प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल. जितना भी अमाउंट है उसके हिसाब से हमें ये टोटल जो भी अमाउंट है ये अधेसिव मीन्स ये रेवेन्यू स्टैम्प लगाना पड़ता है. और डॉक्यूमेंट विदाउट अ रेवेन्यू स्टैम्प कैन नॉट बी कंसिडर्ड लीगल. अगर कोई साइन करके वापस भी देता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम वो बोल देगा कि मैंने ये नहीं किया है. तो उसके सामने ही उसका साइन लेते समय आपको बताना चाहिए रेवेन्यू स्टैम्प के साथ है. अब तो सब इमेजेस आ गई है तो उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू द थियरी पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. प्रॉमिसरी नोट की जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सेम जा रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन उसमें कुछ सिंपल सा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उससे अलग है. राइट, वो अनकंडीशनल प्रॉमिस है वहाँ पर और कुछ नहीं, लेकिन उसको हम ध्यान पे नहीं लेते. लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 11 बिकॉज 1 to 5 पॉइंट इज देयर, 6 to 10 इज नॉट देयर एंड 11 इज देयर. तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल ये आपने बहुत बार सुना है. लास्टली हमने इसको हमारे ट्रायल बैलेंस में भी यूज़ किया था. राइट, आपको मालूम है बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बिल्स पेएबल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. तो समझ लो बिल्स रिसीवेबल डेटर्स के साथ कनेक्टेड है, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स के साथ कनेक्टेड है. तो इससे तो मालूम पड़ गया कि ये जो बिल है, राइट, वो डेटर्स से मिलेंगे, ये जो बिल है क्रेडिटर से मिलेंगे. लेट्स सी, लुक आफ्टर दिस वन. अ बिल मेनली नोन इन 2 ways, bills receivables and second one bills payables. A person or a trader who has to receive money from other person or customer draws a bill on that person or customer. तो एक पर्सन जो है जिसको हम ट्रेडर बोलते हैं, जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, उसको दूसरे पर्सन से पैसे लेने, मोस्टली वी कैन से द अदर पर्सन दैट इज़ कस्टमर या डेटर. तो वही बिल लिखेगा, जिसको जिससे पैसे लेने वही लिखेगा, यानी ट्रेडर लिखेगा, वो ड्रॉ करेगा बिल ऑन दैट पर्सन, इसके ऊपर. तो ये बंदा इसके ऊपर बिल लिखेगा, यानी क्रेडिटर डेटर के ऊपर बिल लिखेगा, ट्रेडर सामने वाले कस्टमर के ऊपर बिल लिखेगा. राइट, सो द पर्सन और कस्टमर ऑन होम द बिल इज ड्रॉन एक्सेप्ट दिस बिल. तो जिसके ऊपर बिल लिखा गया है यानी कस्टमर के ऊपर, वो बिल देखेगा, राइट, और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आई विल पे द मनी. सो हियर इट इज़ अ बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज द बिल. तो जो बंदे ने बिल लिखा है, जो ट्रेडर ने बिल लिखा है, उसके लिए ये होगा बिल रिसीवेबल. यानी समझ लो कि एक सेलर है, ट्रेडर है, क्रेडिटर है, वो बिल लिखता है सामने वाले के ऊपर, सामने वाला बिल लेकर साइन करके वापस देता है. तो मेरे लिए, मैंने बिल लिखा है तो मेरे लिए ये बिल्स रिसीवेबल है.
राइट, और सामने वाले के लिए राइट इट इज़ अ बिल पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। तो जिसने बिल एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं पैसे दूंगा, उसके लिए ये बिल्स पेबल है। तो सिंपल सा क्रेडिटर के लिए ये जो गुड्स बेचता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, डेटर के लिए जो एक्सेप्ट करके वापस करता है उसके लिए बिल्स पेबल है, क्योंकि उसको भी बिल पे करने हैं। ओके, सो जिसको पैसे देने हैं उसके लिए बिल्स पेबल, जिसको पैसे रिसीव करने हैं, यानी मेरे एग्जांपल में मैं खुद, तो मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, याद रखना। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स इट इज़ अ बिल रिसीवेबल फॉर द क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल फॉर द डेटर। याद रख लो, सिंपल सा है, जो लिखता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जो एक्सेप्ट करके वापस करता है हाँ भाई मैं पे करूँगा, उसके लिए वो है बिल्स पेएबल। सी द एग्जाम्पल, कमल हैज़ टू रिसीव ₹30,000 फ्रॉम गिरीश। कमल को गिरीश से पैसे लेने 30,000 रुपये। हियर कमल वुड ड्रॉ बिल, तो कमल स्वाभाविक से कमल एज बिल लग से राइट ऑफ ₹30,000 ऑन गिरीश। तो कमल रोड द बिल और कमल विल राइट द बिल ऑन द गिरीश एंड गिरीश विल एक्सेप्ट द सेम, बिकॉज गिरीश को मालूम है कि मैंने ये गुड्स लिए तो मुझे पैसे देने ही है ना, तो ही विल एक्सेप्ट द बिल राइट एंड दिस बिल एक्सेप्ट करके वो वापिस देगा ना। तो दिस बिल इज बिल रिसीवेबल फॉर कमल, कमल ने लिखा है 30,000 का बिल, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल फॉर द गिरीश, क्योंकि गिरीश ने उसको एक्सेप्ट करके वापस किया है, हाँ आई विल पे द अमाउंट। आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल द ड्रॉई यानी एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिटर्न्स द बिल टू द ड्रॉवर ऑफ द बिल। तो यहाँ याद रखो, जो ड्रॉवर है वो क्रेडिटर है, वो बिल लिख के देता है किसी एक बंदे को यानी डेटर को, डेटर उसको एक्सेप्ट करता है, वो बन जाता है ड्रॉवी। यहाँ दूसरा नाम आया राइट, एक्सेप्टर या ड्रॉई। याद रखना, ड्रॉवर इज द पर्सन हु इज द क्रेडिटर, एक्सेप्टर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज अ ड्रॉई राइट, दैट इज द थिंग। सो ड्रॉई एक्सेप्टर ऑफ द बिल एंड रिटर्न्स द बिल टू द ड्रॉवर ऑफ द बिल। तो जो एक्सेप्ट करेगा बिल वो लिख के वापस देगा ड्रॉवर को। तो ये एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। अब देखो, बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट वी कैन से फॉर द ड्रॉवर ऑफ द बिल, whereas bills payable is the liability for the drawee यानी एक्सेप्टर ऑफ द बिल। तो अब आपके पास ये नॉलेज तो है कि एसेट कौन कौन सी है, लायबिलिटीज कौन कौन सी है राइट। तो बिल्स रिसीवेबल दैट इज एसेट फॉर द पर्सन हु इज़ राइटिंग, जो लिखता है ना उसके लिए वो एसेट है, जो एक्सेप्ट करके वापस करता है उसके लिए वो लायबिलिटी है राइट, क्योंकि उसको पैसे पे करने हैं। सो इफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल एंड द पेई आर बोथ द सेम पर्सन, जो बिल लिखता है द ड्रॉवर ऑफ द बिल एंड पेई वही रिसीव करता है, देन इट इज़ अ बिल रिसीवेबल फॉर द ड्रॉवर एंड बिल्स पेएबल फॉर द ड्रॉई यानी एक्सेप्टर। तो यहाँ ये याद रखो कि जब ड्रॉवर एंड पेई दोनों सेम है, सो ये क्या बनता है, बिल रिसीवेबल फॉर ड्रॉवर एंड बिल्स पेएबल फॉर द ड्रॉई, सेम ही है ना। तो पेई तो यहाँ पर है ही ना, हमने बोला कि मोस्टली ये तीनों का यूज़ होता है, लेकिन ड्रॉवर और पेई दोनों सेम होते हैं। बट व्हेन अ ड्रॉवर ऑफ द बिल एंड द पेई आर डिफरेंट पर्सन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बिल रिसीवेबल फॉर द होल्डर ऑफ द बिल। तो उस टाइम पर थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा आपको समझने में, लेकिन समझना ये है कि जब ड्रॉवर ऑफ द बिल अलग है और पेई भी अलग है, यानी कोई एक्सेप्ट अलग पर्सन करता है, एक्सेप्ट यानी पैसे की बात है, बिल तो एक्सेप्ट करना एक ही आदमी है। सो वी कैन से कि बिल रिसीवेबल फॉर द होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास बिल है वो उसका पर्टिकुलर कहलाएगा बंदा। यानी सिंपल सा है, एट द एंड ऑफ द ईयर जिसके पास बिल का टोटल अमाउंट का जो भी कागज़ है राइट, वो उसका होल्डर जो है वो कंसीडर होगा बिल्स रिसीवेबल उसके लिए। तो जनरली किसके पास होता है राइट, कंपनी कोई आदमी के पास ही होता है। सो इन अ बैलेंस शीट बिल रिसीवेबल शोज एंड अंडर द करंट एसेट यानी एज करंट एसेट, वाइल बिल्स पेएबल एज करंट लायबिलिटी। तो BR दैट इज बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स, BP bills payables are current liabilities. So this details can be shown in the table format as given in the next page। यानी हम इसको देखते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको टेबल के रूप में ऐसे ये टेबल तैयार कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल पहले देख लेते हैं, इट इज़ ड्रॉन और मेड, ये लिखा जाता है। करंट एसेट है बिजनेस का, ऑफ द बिजनेस। मनी इज़ रिसीव्ड इन फ्यूचर, ये आपके पास हो तो यू विल रिसीव मनी इन फ्यूचर। और चौथा वाला जनरली इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल, ये कौन से पर्टिकुलर इंटेंट से बनाया जाता है, व्हेन द क्रेडिट सेल इज डन, आपको ये बनाना है। ये चार है। तो इसका अपोजिट देख लेते हैं, बिल्स पेएबल क्या है। पहला तो इट इज़ एक्सेप्टेड, ये बनाया जाता है, ये एक्सेप्ट किया जाता है, ये करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है।
मनी इज़ पेबल इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में मिलेगा, ये फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा। इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स एंड इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम क्रेडिट परचेस, तो ये क्रेडिट परचेस से क्रिएट होता है, ये क्रेडिट सेल से क्रिएट होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो याद रख लो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सीधी तरीके से इसको समझ भी सकते हो, राइट। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसको हम कैसे यूज़ करें, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ड्रॉवर कौन है, पेई कौन है, एक्सेप्टर कौन है, राइट। ड्रॉवर खुद पेई बन सकता है, वो होल्डर हो सकता है, राइट, वो डिपेंड होता है सिचुएशन क्या है उसके ऊपर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट, दैट इज टर्म्स ऑफ बिल, ड्यू डेट एंड डेज ऑफ ग्रेस। तो जनरली ये पर्टिकुलर हमारे कितने दिनों के लिए हमने बनाया उसके ऊपर डिपेंड है। So the date on which the bill is written or drawn is shown in the bill. It is called date of drawing the bill. तो कौन सी डेट ड्राइंग ऑफ बिल कही जाती है, कौन सी डेट ड्राइंग ऑफ बिल कही जाती है? तो सिंपल, जो बिल आपने बनाया, हमने स्पेसिमेन देखा, उसके ऊपर हमारे एग्जाम्पल में थी 9th of August, राइट। तो वो हमारे लिए डेट ऑफ ड्राइंग द बिल है, जिस दिन पर हमने वो लिखा है। सेम पीरियड इज अलाउ फॉर द पेमेंट बाय द बिल्स ड्रॉवर टू द बिल एक्सेप्टर, इट इज़ कॉल्ड टर्म्स ऑफ बिल, यानी उसको समय दिया जाता है बिल्स का जो भी अमाउंट हो पे करने के लिए। तो सम पीरियड इज़ अलाउड, सेम नहीं है, सम है, ये सम थोड़ा बहुत पीरियड उसको दिया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ द बिल ड्रॉवर टू द बिल एक्सेप्टर। जो बिल ड्रॉ करता है, जो क्रेडिटर है, वो डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है, तो उसको थोड़ा समय देता है पैसे देने का, उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ बिल। उसका टाइम पीरियड, इन शॉर्ट कितने समय तक आप हमको पैसे दे सकते हो, वो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल 2 months बिल, 3 months बिल, एट्सेट्रा। बिल 3 महीनों से ज़्यादा नहीं होता है। आफ्टर द टर्म्स ऑफ बिल, बिल एक्सेप्टर हैज़ टू पे द अमाउंट विच इज़ शोन इन द बिल टू द बिल ड्रॉवर, यानी इन द बिल टू द बिल ड्रॉवर। जिसने बिल लिखा है उसने बिल के अंदर अमाउंट लिखा है, जिस डेट पर बिल लिखा है वो लिखा है, कब तक आप पैसे दे सकते हो वो भी लिखा है, 1 month, 2 month, 3 month, तो उस समय में आपको वो पैसे देने, याद रखना। तो इट इज़ शोन इन द बिल टू बिल ड्रॉवर। अच्छा, बाय एडिंग द पीरियड ऑफ द बिल, बाय एडिंग द पीरियड ऑफ द बिल टू द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल। तो उसको पाकती तारीख बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट, उस डेट पर आपको पैसे देने। फिर से एक बार, बाय एडिंग द पीरियड ऑफ द बिल टू द डेट, जो हमारे एग्जाम्पल था उसमें था 9th of August, उसमें हम 3 महीने ऐड करें तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो 3 महीने हो गए, 3 महीने का बिल था, तो 9th of November को उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखा ही है, बाय एडिंग द पीरियड ऑफ द बिल टू द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। तो वो हम पाकती तारीख बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डेट ऑफ द बिल ड्रॉन इज 21 जनवरी 2016। इस डेट को हमने बिल लिखा है, मैं खुद डेटर हूँ, सॉरी क्रेडिटर हूँ, और मैंने ये डेट लिखी है बिल के ऊपर। पीरियड मैंने 3 महीने का दिया है एंड द पीरियड इज़ 3 months। तो एज अ क्रेडिटर, एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन मैंने बिल लिखा, आई एम द ड्रॉवर ऑफ द बिल, मैंने लिखा, और उस पर तारीख थी 21 जनवरी, पीरियड था 3 महीने का। अब देखो ये कैसे वो बिल डिसाइड होगा, उसका पर्टिकुलर ड्यू डेट, कब तक वो पैसा देगा हमें। तो ये कैलकुलेशन ऐसा करेगा, डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल 21 जनवरी 2016, पीरियड ऑफ द बिल 3 months, यानी यहाँ से लेके 3 महीने, तो जनवरी, उसका 3 महीना देखो फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो 21 अप्रैल होती है। सी मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल दैट इज 21 अप्रैल 2016 विदाउट डेज ऑफ ग्रेस। यहाँ ग्रेसिंग पीरियड नहीं दिया है। आपको मालूम है ग्रेस क्या है? बता दूँ, ग्रेस यानी आपको थोड़ा प्लस माइनस डेज दिया जाता है, क्योंकि बीच में छुट्टी आ गई, शायद उस डेट पर आपको कुछ काम आ गया, उस डेट पर तो आपको कुछ छूट के, जो बोलते हैं छूटना दिवसों मरे थे। जनरली ये गवर्नमेंट के जब एसटी में हम आते हैं तो उसके ऊपर आपको 3 दिन तक आपका पास चलता है, आपको मालूम है ग्रेस पीरियड होता है। वैसा ही यहाँ पर ग्रेस पीरियड वो देना पड़ता है। द रीज़न इज दैट कि ऑन द सेम डे शायद कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपको 1 आध 2 यानी यहाँ पर 3 दिन आएंगे ऐसे। तो ग्रेस पीरियड के बिना ये हुआ 3 महीने का टाइम, 21 अप्रैल 2016। जनवरी से लेके अप्रैल तक 3 महीने हो गए, तारीख वही आएगी, राइट, सिर्फ मंथ चेंज होगा। नाउ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ मनी इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिल 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड। थोड़ी पेमेंट में फैसिलिटेट करने के लिए, राइट, ट्रांजेक्शन में आपको 3 दिन दिए जाते हैं ग्रेस के, छूटना दिवसों के बाद। दिस मीन्स दैट
3 days of grace are added to the date which is derived after adding the period of the bill टू द डेट ऑफ द ड्राइंग द बिल। यानी यहाँ से लिखा 3 महीने ये हुआ तो इसके अंदर हम 3 महीने ऐड करेंगे, 3 दिन ऐड करेंगे, सॉरी दैट इज़ 3 महीने तो ऐड हो चुके हैं, 3 दिन ऐड करेंगे ग्रेसिंग के, राइट। सो इट इज़ पर्टिकुलर 3 days एडिशनल। सो दिस एडिशनल 3 days इज कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। तो 3 जो हमने एक्स्ट्रा दिन दिए वो एडिशनल डे दिए वो है डेज ऑफ ग्रेस, छूटना दिवसों डियर स्टूडेंट्स। सो आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस on the maturity date or due date of the bill, a date which come is called due date or maturity date with days of grace। तो सिंपली इसको भी हम मैच्योरिटी डेट बोल सकते हैं और 3 days ऐड करने के बाद जो आएगी उसको भी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट बोल सकते हैं। तो हमारे एग्जांपल में डेट ऑफ ड्राइंग द बिल 21 जनवरी, पीरियड ऑफ द बिल 3 months दिया हमने, उसके बाद डेट ऑफ ड्यू डेट दिया बिल की 21 ऑफ अप्रैल 2016 और 3 दिन ग्रेस के, ड्यू डेट विथ डेज ऑफ ग्रेस 3, तो 21 से 3 दिन और 22, 23, 24, तो 24th ऑफ अप्रैल दैट इज 21st ऑफ अप्रैल 2016 प्लस 3 days तो 24th ऑफ अप्रैल 2016। सो इफ द मैच्योरिटी ऑफ द बिल फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, ये खास ध्यान रखना, ये जो 24th है हमारे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 24th के दिन अगर पब्लिक हॉलीडे आया और संडे आया तो प्रीसीडिंग डे इज कंसिडर टू बी द मैच्योरिटी डेट, यानी 25th, राइट, प्रीसीडिंग जो आएगा उसके बाद का वो। फॉर एग्जांपल इफ द बिल मैच्योर्स ऑन 26 जनवरी, हमारे पास एग्जांपल अच्छा है, 26 को बिल हमारा मैच्योर होता है, यानी यही डेट है, समझ लो ऐसा ही मैच्योर हो गया, डेट ऑफ विद ग्रेस। 25 जनवरी विल बी कंसिडर एज मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल बिकॉज ऑफ 26 जनवरी। अच्छा हाँ, प्रीसीडिंग है आगे का दिन, तो हमारे क्वेश्चन में 24th को अगर छुट्टी आती है तो 23। यहाँ पर एग्जांपल देखो 26 को हमारा बिल मैच्योर होता है, यानी ये पर्टिकुलर प्रीसीडिंग आगे वाला जो इन नॉट सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग जो है वो 25 जनवरी है, तो वो कहा जाएगा मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल बिकॉज 26 जनवरी इज पब्लिक हॉलीडे। अगर संडे भी आ गया तो आगे का दिन लेना प्रीसीडिंग। If the payment of the bill cannot be made on the maturity date due to abnormal circumstances like natural calamities, curfew, riots, close down, अब नया वर्ड आ गया लॉकडाउन etc, the next working day after the maturity date, यहाँ आगे का maturity date will be considered as the maturity date। So हमारे केस में ये 24 का था, इसी दिन को कुछ हुआ, राइट, इस कोई भी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में ये एबनॉर्मल है, कुछ भी हो गया तो इसके बाद का, राइट, जो भी डे आएगा 25th उसके दिन नेक्स्ट डे आफ्टर वर्किंग डे वो कहलाएगा मैच्योरिटी डेट। तो अगर कंडीशंस हॉलीडे की है, पब्लिक हॉलीडे की है तो आगे का दिन, राइट, और पब्लिक हॉलीडे नहीं है, राइट, और कोई ऐसा एक सर्कमस्टेंसेस एबनॉर्मल आएगा तो पीछे का दिन। इन टर्म्स ऑफ द बिल इज गिवन इन डेज इंस्टेड ऑफ मंथ्स, राइट, तो इन द टर्म्स ऑफ द बिल इज गिवन इन डेज इंस्टेड ऑफ मंथ्स, देन नंबर ऑफ डेज शुड बी कंसिडर्ड टू डिसाइड द मैच्योरिटी डेट। तो कई बार तारीख ना दी हो आपको और आपको डेज दिए हो, राइट, क्या 3 महीने, तो देख लो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ ड्राइंग द बिल 21 ऑफ जनवरी हमारा ऊपर का, अब आपको पीरियड दिया है, देखो 3 महीने नहीं दिया है, यहाँ 90 days दिया है, तो यहाँ कैलकुलेशन कंपलसरी करना पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेशन डोंट राइट डाउन द डेट, रॉन्ग आएगा। कैसे? क्योंकि कोई महीना ऐसा होता है जिसमें 31 days होते हैं, कोई महीना ऐसा होता है जिसमें 28 days होते हैं, फरवरी महीना, है, तो याद रखो। तो पीरियड ऑफ बिल हमें 90 days दिया, तो हमें ये डेज काउंट करने, तो पहले क्या करेंगे, फाइन मैच्योरिटी डेट हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो देख लो व्हाट इज़ द मैच्योरिटी डेट, तो पहले हमने बिल लिखा है वो तारीख है 21 जनवरी, तो जनवरी 2016 के टोटल 31 days है, उसमें से 21 तो चले गए, तो बाकी कितने रहे 10, उससे गिनती करो, राइट, 22 से लेके 31 तक, राइट, उसमें 21 माह खत्म हो गया तो 22 से शुरुआत करेंगे तो 10 दिन रहेंगे। फरवरी 16 है, लीप ईयर होगा 29 डे, मार्च के पूरे 31 days, और अप्रैल में जो हमारा टाइम पीरियड आएगा, राइट, उसको हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, तो इन सब का टोटल करना है, तो इन सब का टोटल क्या होगा 31 + 9 40 + 20 60 + 10 70, तो बाकी कितने दिन रहे 20, तो अप्रैल में हम 20 दिन लेंगे, राइट, तो टोटल ये 90 किया, ये 70 हुआ और 90 days है तो 70 20 days आ गया, तो ये 90 days हो गया। तो अब यहाँ हमें डेट कैसे डिसाइड करनी है, सो द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल इज़ 24th ऑफ अप्रैल, क्योंकि इसके 20 days लिए ना, प्लस 3 days ग्रेस के, तो 23rd ऑफ अप्रैल। अब ऊपर देखो, ऊपर 21st डेट आई थी, यहाँ 20 डेट आई, ये रीज़न ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमने डेज लिखे, ऊपर हमने लिखा था मंथ्स, तो डायरेक्टली हमने काउंट कर लिया 21 जनवरी से 3 months तो 21 अप्रैल, लेकिन ये हम डेज काउंट किए तो अब 1 दिन कम हो गया, देखो, तो उसको 1 दिन पहले आ गया अगर डेज के हिसाब से जाएंगे तो।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ बिल, ड्यू डेट और डेज ऑफ ग्रेस है। अब इसके बाद का जो भी पॉइंट है, राइट, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। दैट इज़ पॉइंट नंबर 13, 14 एंड 15। उसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 3 थियरी पोर्शन अभी बाकी है। बिल्स एट साइट, बिल्स आफ्टर डेटेड, डिस्पोजेबल और यूजेस ऑफ बिल, और 15 जो सिंपल सा है, दैट इज़ डिसऑनर। वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।